Good afternoon, everyone. Today, I'm here for this session because all of us, all the teachers at Level Up IAS, have been getting lots of call regarding different situations. Regarding when marks is on the preliminary examination, when marks is on the lower side, preliminary examination and marks is on the higher side. क्या करना चाहिए? What should be the future strategy? And we have all been talking about the same thing to every student separately. I decided why don't I take this session so that I can cater to all the doubts that you have at one place, so that the number of individual personal calls may be slightly on the lower side. Okay, so for any one of you, when you have any doubt, when you ask anything, audio जा रहा होगा ना? हाँ, when you ask anything, what you do is you always send me a chat here, and always do mention in which program you are already enrolled, or whether you are a student of Level Up IAS or you are not a student of Level Up IAS. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये डाउट है कि सर what about preparation in the sense, let's say some of you who are scoring, there are some of you who may be scoring less than 80, some of you may be scoring between 80 and let's say 90, जो अपने आप को बाउंड्री पे मान रहे हैं, एंड देन सम ऑफ यू मे बी स्कोरिंग अबव 90. वैसे तो अबव 85 मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, above 85 it's safe. Cut off will be between 80 to 85 because this preliminary examination paper was difficult than last year's paper. पहली चीज. दूसरा, CSAT was tougher. So again, like 2023, I have seen many students जो GS में are doing very well. GS में are scoring 100, 105, but are coming and saying कि sir in CSAT we're only getting 60. In CSAT I'm only getting 55. In CSAT I'm only getting 60. And that is why, for these two reasons. एक CSAT difficult था, और एक in general this paper was lengthier and more difficult than last year's paper. Cut off should be between 80 to 85 as per my understanding. अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में वो गलत भी हो सकती है, बट इतना होना चाहिए. तो फॉर जनरल कैटेगरी, एंड अगेन फॉर EWS 5 नंबर कम कर लो, फॉर SC/ST 5 नंबर कम कर लो, दैट विल बी द वेरिएशन इन जनरल. तो करना क्या चाहिए? देखो यार, इवन लाइक when you are scoring less than 80, और let's say एक सिनेरियो ये भी है when you are scoring less than let's say 60. Less than 60 shows कि you are in very bad situation, your fundamentals are not good enough. अभी बहुत सारा काम करना बाकी है. But for now let me keep these people aside. I'll speak about them separately. For these three group of people, यार हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना तो अभी मेंस के लिए ही. Whether you are here or here or here, people who are in this range, who are scoring above 85 or above 90, people who are scoring above 85 or above 90 should start their mains preparation without any doubt. They should be like एक GS का टेस्ट सीरीज जिसमें एटलीस्ट 3-4 essays भी हो, essay papers हो, मतलब there will be 6 to 8 essays, और एक ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज. If you are not already part of it, लीजिए, and according to that start working on it. Start working on it means in your first optional paper, whatever is the syllabus, you prepare that and stick to the schedule, stick to your optional test schedule. In the same way, आपके first GS के टेस्ट में जो शेड्यूल, GS के टेस्ट का जो सिलेबस है, complete that and stick to the GS test schedule. This is what you have to do. आपको अब से मेंस तक every Sunday you have to write 2 tests, 1 GS test, 1 optional test. Maybe पहले 1 or 2 Sundays you may skip because you are getting into the groove, you're planning what to join, where to join and all. But perhaps from let's say 15th of June, there should not be a single Sunday where you are not writing at least 2 tests. एक GS का टेस्ट, एक ऑप्शनल का टेस्ट देना ही है. We'll talk about how to study, how to plan a day over the next 2.5 months, how Level Up would be able to help you. उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. But this is a general thing which all of you should do. Join a GS test. जिसका स्कोर 90 प्लस आ रहा है, join a GS test.
join a optional test, GS टेस्ट में essay भी हो, write at least 7-8 essays, ये मिनिमम हमें करना है। लेवल अप का भी टेस्ट सीरीज है, हम बात करेंगे उसके बारे में। here I'm not here more about हमारे कोर्सेज क्या है, I'm here to discuss more about कि यार आपको क्या करना है। ओके, I'll take doubts guys। रितिका ने बड़ा सा मैसेज भेजा है अभी। ओके रितिका, I'll take doubts, let me first give you a brief strategy for everyone, common thing for everyone, then again जो बच्चे 80 और 90 के बीच में है ना, वो दे आर एट द बाउंड्री, और 80 और 85 के बीच में दे आर एट द बाउंड्री। प्रीलिम्स क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नाउ एज पर माय एक्सपीरियंस, लाइक लास्ट ईयर देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु वर ऑन द बाउंड्री, सम ऑफ देम क्लियर्ड, सम ऑफ देम डिड नॉट क्लियर। बट जो बच्चे क्लियर्ड प्रीलिम्स आफ्टर बीइंग ऑन द बाउंड्री, they were at a disadvantage because they wasted 20 days thinking यार प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं। Whereas these people जिनका कट ऑफ से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से सब्सटैंशियल मार्क्स ज्यादा थे, they had started working within the very first week, 2-3 दिन 4 दिन रेस्ट करने के बाद they had started working for mains. These people had not started working for mains. You should forget this कि यार प्रीलिम्स होगा या नहीं। You should start your preparation. Just don't join any course right now. Don't join. और यहाँ पे 80 to 85 मानिए थे, 80 to 90 नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 80 to 85 कट ऑफ जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और मेनी अदर टीचर्स आर सजेस्टिंग कि 90 तक भी जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट 80 to 90। ओके, बट 80 to 85 में आप रेंज में है। डोंट जॉइन एनी टेस्ट सीरीज, डोंट जॉइन एनी कोर्स, बट फॉर नेक्स्ट 20 डेज आप क्या करो, रिवाइज जितना हो सकता है अपना ऑप्शनल। यू मस्ट हैव योर क्लास नोट्स ऑफ ऑप्शनल बिफोर यू जॉइन टेस्ट। आफ्टर 20 days once the results come, you join a test series and start writing tests for optional. बट अभी क्या करो, ऑप्शनल पढ़ो, आपके क्लास नोट्स उठाओ, आपका स्टडी मटेरियल उठाओ, एंड मेक श्योर दैट इन नेक्स्ट 20 days यू आर एबल टू फिनिश इट एट वंस, कि एक बार तो मैंने एंड टू एंड पूरा पढ़ लिया। इन द सेम वे, पिक एनी वन जीएस पेपर, one GS paper in which you are very uncomfortable, you are like कि यार इसका तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, and you work on that, right? Don't join any test series, don't join any crash course, don't join anything right now. Do it when the results come, when you are sure कि हो गया। but अगर आप अभी पढ़ना शुरू नहीं करोगे ना, those people who are here would already have 20 days का advantage, and you will not be able to make it in the mains examination. So start studying right now. Sagar is saying he is getting 90 plus in GS, but CSAT में 64, 65, 66 वाली रेंज में। देखो सागर, last year whatever marks student calculated in CSAT, they were able to get roughly 3-4 marks more than that. तो आप भी respectable position में हो, there are high chances that, very high chances that you will clear pre, but worst case में अपने आप को यहाँ मान सकते हो। If not here, you are here, and start preparing. मैं भी बात करता हूँ कि कैसे मेंस मास्टर्स प्रोग्राम एट लेवल अप, या टेस्ट सीरीज एट लेवल अप, या एंथ्रोपोलॉजी क्रैश कोर्स, या सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स, या हिस्ट्री क्रैश कोर्स, या PSIR क्रैश कोर्स, हाउ दोस थिंग्स वुड बी यूजफुल। विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट करना क्या है, एनीवन इन द जनरल कैटेगरी, अगेन आप अगर EWS कैटेगरी से है, OBC कैटेगरी से है, SC ST कैटेगरी से है, आप इस रेंज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। यू नो कट ऑफ डिफरेंस कितना होता है जनरल OBC का, कट ऑफ डिफरेंस कितना होता है जनरल EWS का, कट ऑफ डिफरेंस कितना होता है जनरल SC ST का, अकॉर्डिंगली यू मॉडिफाइड। ओके, तो क्या करना है, 90 प्लस, ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज फॉर GS, ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज फॉर ऑप्शनल, लग जाओ प्लान के साथ। जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम बताएंगे कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर टेस्ट सीरीज हमारा किया है तो हम टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन, उन सब के बारे में बात करेंगे। फॉर दोज ऑफ यू हु आर हियर बिटवीन 80 to 90, you do what? You don't join any test series, but start studying for mains very seriously.
assuming you are writing mains this year, because if you don't do this for 20 days, ये बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे. आपके पास अराउंड 80 डेज है पूरी प्रिपरेशन के लिए. 25% टाइम अगर आप कम दोगे, you can understand what I'm trying to say. Now let's talk about students who are getting less than 80. हाँ, मैं बात करता हूं, अमोक के मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, अमोक उससे परेशान है. शशांक के 89 to 96 जीएस में, शशांक उसी कैटेगरी में हो यार. एंड सीसैट में 98. हाँ शशांक, मैं इसके बारे में बात करता हूँ. लेट मी जस्ट एक बार ये लेस देन 80 वाले बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर विल कम टू द इंडिविजुअल डाउट्स दैट यू पीपल मे हैव. ओके, नाउ देखो, इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 80 and if you are in general category, you do not have any EWS reservation wala benefit or OBC SC ST reservation wala benefit, chances of clearing this pre would be slightly lesser or would be like बहुत सारा luck पे depend करेगा. but एक बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को भी, even for those of you who are scoring less than 80. देखो, of the 10,000 people roughly who will be writing mains this year, only 1,000 are going to get selected. जो 9,000 बच्चे जो अभी मेंस लिख रहे हैं ना, they will again be competing with you next year. So if these 9,000 students who will be your competitors, and even for those who are going to get selected, उनमें से भी कुछ लोग next year exam दोबारा लिख रहे होंगे. If these people are going to be your competitor, and if in these 3 months they are going to spend some of the toughest days of their lives, they're going to work the hardest that they have ever done in their life. अगर आप वो नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है? आप पीछे जाओगे कंपटीशन में. तो what is needed? Even you prepare for mains. You target, if not the entire thing, आप ये टारगेट रखो कि एटलीस्ट मेरा ऑप्शनल and 2 GS papers will be fully completed by when? Will be fully completed by August end. When these people will be writing mains, I'll also try to ensure that I will take paper once the paper is available in the market and I will complete my optional. मैं घर पे बैठ के लिखूंगा, but मैं लिखूंगा. मेरा प्रिपरेशन ऑप्शनल का तब तक पूरा होना चाहिए. मेरा प्रिपरेशन जीएस का एटलीस्ट नॉट ऑफ ऑल 4 जीएस पेपर, 2 जीएस पेपर्स के पूरे होने चाहिए. बात समझ में आई है? These are the general things that I have been talking. प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा सकते हो? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, मैं ये भी कोशिश करूंगा, है ना. तो these are the general things that I have been telling everyone right from 5 PM on 25th May से अब तक. I have attended perhaps 100 calls. मैंने बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस मिस भी किए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट. बट ये जनरल चीजें मैं सबको बोल रहा हूं, ये रफली स्ट्रैटेजी होना चाहिए. नाउ आई टेक ऑल द क्वेश्चंस. जिन बच्चों का यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में प्री क्लियर हो रहा है, how should they be moving forward, we'll talk about all those dimensions, all those aspects. Also give me a few minutes, a few seconds for this. Give me a few minutes for this. But ये बताइए, इसमें कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है किसी को? इसमें कोई डाउट है? सोनिका बोल रही है मेंस में कोई आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है. बेटा अभी बात करते हैं हम मेंस का भी पूरा प्रिपरेशन कैसे करना है. फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट आई विल टॉक अबाउट. ओके, आई एम अज्यूमिंग इसमें कोई डाउट नहीं है. लेट मी नाउ टॉक अबाउट हाउ शुड वी बी प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. हाउ शुड वी बी प्रिपेयरिंग फॉर मेंस? सैमसंग बोल रहे, सैमसंग अपना ओरिजिनल नाम ही लिख लेते हैं वहां पे. वो बोल रहे हैं कि ही स्कोरिंग 82 to 100. व्हाट आर माय चांसेस ऑफ? अच्छा, अलग अलग आंसर की, इससे 82 to 100 है. बेटा देखो, दिख रहा है कि आपका मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शन हो जाएगा. आपका एवरेज स्कोर अराउंड 90 आ रहा है, 91 आ रहा है. दैट इज शोइंग कि देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड. ओके, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर.
how to prepare for mains. How to prepare for mains 2025. देखो, now सर प्लीज स्टार्ट विथ प्रिलिम्स फॉर नेक्स्ट ईयर. बेटा प्रिलिम्स फॉर नेक्स्ट ईयर की बात कर लेंगे ना. अभी एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग और गोइंग टू राइट मेंस दिस ईयर, उनको जल्दी से फ्री कर देते हैं समझा के कि कैसे होगा, है ना. तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस 2025. अब देखो देयर आर, यहां पे भी ना देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. देयर इज वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, completed GS1, GS2, GS3, GS4. ये बच्चे हैं कुछ, और कुछ बच्चे हैं अनप्रिपेयर्ड. जैसे वन स्टूडेंट सोनिका वाज जस्ट टेलिंग मी कि जस्ट मैसेजिंग कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, और पार्शियली प्रिपेयर्ड, हैफेजर्डली प्रिपेयर्ड. जीएस फाउंडेशन कोर्स किया था, बट दैट जीएस फाउंडेशन कोर्स में फंडामेंटल्स कवर हुए हैं, एंड मेंस के लिए लाइक प्रॉपर आंसर राइटिंग, सिलेबस, bullet point wise every syllabus being done, these things haven't been done. तो one set of people who are fully prepared. जैसे इसमें मैं किन बच्चों को डालूंगा, जैसे I have some students who have completed their mains masters program. हमारा एक मेंस मास्टर्स प्रोग्राम था जो सितंबर से जनवरी तक रन हुआ था, एंड सम स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दिस. तो दे हैव कंप्लीटेड जीएस 1 2 3 4 पूरा. राइट, व्हाट शुड दी स्टूडेंट्स बी डूइंग? देखो आपको ना टेस्ट सीरीज करनी है. डोंट ज्वाइन एनी कोर्स एज सच, यू डोंट नीड इट. थोड़ा वैल्यू एडिशन, इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू वांट टू डू टेस्ट सीरीज, आपको जीएस प्लस ऑप्शनल की करनी होगी. वर्क ऑन दैट, improve in every test, do some value addition, and do well in the examination. Do not run behind lots of courses. If you want to do something, I'm planning to launch a advanced current affairs. Advanced current affairs mein there will only be 2 classes a week, and here I'll only be dealing with current updates of last 7-8 months, so that जिन बच्चों का मेंस ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर्ड है उनको और क्या ऐड करना है. करंट इश्यूज, इंडिया पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हो गई हैं, इंडिया पाकिस्तान पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, these are the kind of issues that we would need to cover. आपको सिर्फ ये करना होगा, that's it. आपका प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन. Your MMP, if you are like, I've just written MMP as one of the examples कि जिन बच्चों ने मेंस मास्टर्स प्रोग्राम पहले कर रखा है. You may have done any other course and you may be feeling confident. If you look at each and every bullet point of the syllabus, you feel like ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है. If you look at their PYQs, you're like, I know this PYQ, I know this PYQ, I can answer this, I can answer this, I can answer this. If you are in that stage of the preparation, for those students, this is what I'm recommending. What you do, you join test series, GS का भी, optional का भी, practice more and more. अब जब when I'm saying GS का test series, it also includes essay वाला. Practice more. Do some value addition. If you want to attend some classes, एक मैं advanced current affairs का क्लास लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ current affairs पढ़ेंगे. 2 classes a week, Saturday, Sunday. Not a lot of workload. Only the most important current issues preparing for, which we'll be doing for mains examination. That is what we are going to do here. Right? इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. अगर आप ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो ऑप्शनल का if you think कि क्विक रिवीजन भी करना है तो ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्लस क्रैश कोर्स ले लीजिएगा. जैसे फॉर सोशियोलॉजी निशात सर इज लॉन्चिंग सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज. ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी में करण सर इज लॉन्चिंग एंथ्रोपोलॉजी क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज. चंदन सर पीएसआईआर के लिए लॉन्च कर रहे हैं, विशाल सर हिस्ट्री के लिए लॉन्च कर रहे हैं. यू मे take that, but you don't need any GS classes. जिनका GS 1 2 3 4 complete है उनको जरूरत नहीं है. Don't waste your time. Give some more time to optional. Revise your GS. Attempt test every Sunday and work on it. Okay. I hope इस पे clarity है. Now for the students who are here, in which category? Students who are not prepared with
GS1, GS2, GS3, GS4, and or they are like haphazardly prepared. If they look at the bullet point of the syllabus, they're like, sir, ये क्रॉपिंग पैटर्न तो आता है, बट ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्ड नहीं है, अब पॉलिटी में जुडिशरी वाला पोर्शन प्रिपेयर्ड है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर अनप्रिपेयर्ड, व्हिच आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ. शशांक बात करते हैं इस पे भी. इस बार ना आई हैव ट्राइड टू स्पीक टू 3-4 डिफरेंट इवैल्यूएटर्स. कौन से इवैल्यूएटर्स? जो यूपीएससी के पेपर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं. मैं उनसे थोड़ा समझा हूं कि क्या चीज देखी जाती है, कैसी देखी जाती है. हम बातें करेंगे उसके बारे में, है ना, कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं. एक अपना तरीका होता है जहां पे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सब हेडिंग्स डालते हैं, मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, 5-6 पॉइंट्स, दूसरी सब हेडिंग डालते हैं, फिर 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. और ये स्टैंडर्ड तरीका हम लोग फॉलो करते आए हैं, जिसमें जनरली बच्चों के अच्छे स्कोर्स आए हैं. बट I want to add some more things to it. I want to go into some more details. वो primarily मैं क्लास में बातें करूंगा, उसके बारे में आपसे अलग से भी बातें करता हूं, करेंगे कि कैसे हम जीएस में मार्क्स को इंप्रूव करें, है ना. आपका GS1 में भी मार्क्स के इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है. जैसे हमें GS1 में अराउंड 110-120 के बीच में जाना है. GS2 में भी मार्क्स में इंप्रूव करने का रिक्वायरमेंट है. GS3 में तो बहुत रिक्वायरमेंट है. 68 इज बैड स्कोर. स्पेशली अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो तो 68 is unacceptable, क्योंकि GS3 में each and everything that came in the examination perhaps came from notes, है ना. कोशिश करेंगे, हम देखते हैं, समझते हैं उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. कोर्स एक्सटेंशन की बात कर रही हैं श्वेता. बेटा, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर दिस, दिस इज नॉट द फोरम फॉर दिस. उसकी भी बात करेंगे, कोर्स एक्सटेंशन की भी बात कर लेंगे सेपरेटली. नाउ कम बैक टू दिस. इनकी बात करते हैं, ये कैसे प्रिपेयर करें. ये बच्चे जो अभी मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए. देखो यार, यू डिवाइड योर डे इनटू 2 हाफ्स. फर्स्ट हाफ ऑप्शनल, और 40 to 50% ऑफ द टाइम इसको दो ऑप्शनल. ऑप्शनल में क्या, 40 to 50% ऑफ टाइम यू विल हैव टू गिव टू योर ऑप्शनल, एंड रिमेनिंग 50 to 60% ऑफ द टाइम. अगर यहां 40% तो यहां 60%, यहां 50% तो यहां 50% टाइम जीएस को दोगे. फर्स्ट, प्लान एवरी डे लाइक दिस. व्हेन यू गेट अप एट 6 in the morning, perhaps आप 6 बजे से उठ के you will get fresh, you will go for some walk, you will have some breakfast, पढ़ने बैठोगे. 6 बजे से रफली 2 बजे के बीच में जितनी पढ़ाई कर पाओगे वो सब ऑप्शनल के लिए होनी चाहिए. कीपिंग इन माइंड संडे को टेस्ट देना है, तो मंडे टू सैटरडे में आई हैव टू फिनिश द सिलेबस ऑफ द टेस्ट, राइट. आफ्टर दैट यू विल रेस्ट फॉर सम टाइम्स, एंड फिर 3 बजे शाम से शुरू हो जाओगे पढ़ना, रात में 12 बजे तक. जो भी, लाइक यू मे अगेन गो फॉर सम वॉक, यू मे गो फॉर सम टी ब्रेक, यू मे हैव डिनर, एंड वो सारी चीजें करोगे. पर जितना टाइम बचेगा 3 बजे से रात में 12 बजे तक, रात में 1 बजे तक, जब तक भी आप पढ़ते हो, दैट टाइम विल गो फॉर दिस. नाउ सर, क्या सोर्सेस होने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी भी बात करते हैं. देखो, ऑप्शनल में तो एवरी like sources would be different, है ना. Optional teacher may take this session about what should be the sources and all, but preferably सबसे पहले अपने class notes, PYQs, and see if you are able to answer, if you are able to cover every bullet point of the syllabus. तो class notes, syllabus, PYQs ये प्रायोरिटी होते हैं. फिर अगर चाहिए तो क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज करना चाहिए सब. मेंस में everyone should be dealing with टेस्ट सीरीज. सर, आपके ये अभी वाले एमएमपी कोर्स में ले इफ के लिए फिजिबल है? बेटा करते हैं हम अब एमएमपी कोर्सेज की बातें करते हैं, समझाता हूं मैं, ऐसे मिक्सअप नहीं करते. तो फर्स्ट थिंग इज दिस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप अपने क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज, सिलेबस, पीवाईक्यूज, उस सेक्शन का जो इस बार संडे के टेस्ट में आने वाला है, टेस्ट सीरीज जो आपको ज्वाइन करना है उसमें आने वाला है, वो करिए. आफ्टर 2 PM रेस्ट फॉर सम टाइम्स एंड स्टार्ट your GS preparation. अब GS में each one of you may have a different methodology. जैसे many of you have asked कि सर वो मेंस मास्टर्स प्रोग्राम में क्या प्लान है, जनरली what are we going to do
in mains masters program. How are we going to do things in mains masters program? देखो, mains masters program will be a difficult program this year because सिर्फ 60 classes ले सकते हैं, and that is how we have planned mains masters program. In 60 classes plus 9 parallel classes. 9 classes शेड्यूल से पैरेलली चलेंगी फॉर एसए till 5th of August. We want to go through each and every bullet point of the syllabus. Now, it's a difficult thing to do. देखो, सिलेबस में रफली 40 बुलेट पॉइंट्स है, उन्हें 60 क्लासेस में कवर कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा. बट दिस इज व्हाट वी प्लान टू डू. हम जो अभी स्टडी मटेरियल बना रहे हैं, हम जो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजें बना रहे हैं, वी आर प्लानिंग ऑल दैट कीपिंग दिस इन माइंड कि हमें 60 क्लासेस में सब कुछ कंप्लीट करना है. ओके, तो इफ यू आर स्टडिंग विद अस फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, if you are studying with us for your mains examination, अगर if you are in this category of student, कौन सी कैटेगरी में हो? यहां पे हो, जो अनप्रिपेयर्ड है. जो प्रिपेयर्ड है वो तो प्रिपेयर्ड है, उनको कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है. जो अनप्रिपेयर्ड है, जिनको प्रिपरेशन की जरूरत है और जिनकी प्रिपरेशन हाफिजार्ड है, एंड दे वांट कि सर सिलेबस का एक एक बुलेट पॉइंट उसके सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हमें प्रिपेयर कराओ, देन MMP is the program for you. We'll be starting with this on 1st of Jan. आइडिया क्या है? हम इकोनॉमी से शुरू कर रहे हैं एंड सिलेबस वाइज जा रहे हैं. फर्स्ट बुलेट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी सिलेबस विल बी स्टार्टिंग विथ. We'll take 3 classes of economy, 3 classes of ancient medieval culture. 3 classes of ancient medieval culture. अब ancient medieval culture को तो हमने क्लासेस ही 3 एलोकेट करी है. For economy we have 10 classes that we are going, 9 to 10 classes that we are going to take. इसमें हमें सिलेबस का एक एक बुलेट पॉइंट विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीइंग डन इन क्लास विथ 1 or 2 क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे सो दैट यू विल बी एबल टू रीड देम, बिकॉज वो भी लेस इंपॉर्टेंट है, बट फॉर सिलेबस कंप्लीशन दैट शुड ऑल्सो बी डन. इन क्लास वी मे नॉट डू दैट बिकॉज हम क्लास में क्या फोकस करेंगे? क्लास में जो सबसे प्रोबेबल टॉपिक है, जो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. फॉर एग्जांपल, इफ आई गो टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया दिस ईयर, डीरेगुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फर्स्ट बुलेट पॉइंट ऑफ द सिलेबस. ऐसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड देयर आर सम मेनी इंपॉर्टेंट थीम्स which are being discussed by government of India, which are being discussed in economic survey of India, which are being discussed in budget. वो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है. दैट इज समथिंग. ठीक है, चलिए, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन MMP, in 60 classes we will finish entire GS 1 2 3 4. We will start with economy and history. तो इकोनॉमी में we will have 9 to 10 classes. एक एक बुलेट पॉइंट ऑफ द सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत ही कंसाइज, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में करेंगे. यहां पे इन 60 क्लासेस, in every class we'll have an answer writing session. At the beginning of the class, in 1 hour we'll be writing answers, 3 to 4 answers in every class. So in 60 class we expect to write 180 to 240 answers or 180 to 200 answers minimum हम क्लास में लिखेंगे as part of this program. So if you are in this category of students and if you want to study with us, हम यहाँ पे we will cater to your requirement. We will work with you to ensure कि जो भी fastest possible way होगा, most efficient, most high और highest ROI, highest return on investment वाला जो mechanism होगा, उस mechanism से you are preparing for your mains. अब देखो 5th of August के beyond हम जा भी नहीं सकते. You'll need a break of 15-20 days to really feel कि हाँ मेरा प्रिपरेशन हो गया है, to really revise everything, right? So we cannot take more than 60 classes here, and that's why पहले ये essay classes were also part of it, पर मैंने कहा essay classes अलग से 2 to 5 PM के बीच में take 9 classes, give me 5 PM से 60 classes for completing GS 1 2 3 4. So here we'll be providing you, we'll be doing classes, we'll be providing you concise handouts in question answer format.
विल ऑल्सो गिव यू सम मोर टॉपिक्स विच वी थिंक इज लेस इंपॉर्टेंट. तो क्लास में समय कम होगा, विल नॉट कवर इट, बट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट दैट विल बी अवेलेबल विद यू. आप उसे 5 मिनट में रीड करके छोड़ दीजिएगा. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम द सिलेबस कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल बी देयर विद यू. इसमें हम करंट अफेयर्स भी आपको करवा देंगे. जो करंट इवेंट्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंस वाले इवेंट्स है, वो आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे. और तो क्लासेस है, हैंडआउट्स है, आंसर राइटिंग है, राइटिंग अराउंड 200 क्वेश्चंस. इफ यू सिंसियरली ऑनेस्टली फॉलो इन 60 क्लासेस विल राइट अराउंड 200 आंसर्स. आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. और whatever is possible in these 60 days that will be able to do. And our test series, जो लेवल अप का टेस्ट सीरीज है जीएस वाला, उसमें जीएस प्लस एसए दोनों के टेस्ट है. एंड वी आर मेकिंग इट इन सिंक विथ आवर एमएमपी प्रोग्राम ऑल्सो, सो दैट जो बच्चा एमएमपी कर रहा है, तो पहला हम इकोनॉमी और हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, तो योर टेस्ट वुड ऑल्सो हैव इकोनॉमी हिस्ट्री क्वेश्चन, मेकिंग श्योर कि इन केस यू ज्वाइन टेस्ट सीरीज एट लेवल अप आईएएस, आपकी पढ़ाई इज इन सिंक with that. Okay, तो अगर आप ये फॉलो करते हैं, your preparation, जो this category of students who are unprepared, we will make sure you are confident by August of entire GS 1, 2, 3, 4. You have written enough answers and you go in the examination hall with a feeling कि preparation हुआ है. मैंने PYQs भी सारे देखे हैं, मुझे आता है, मैंने काफी आंसर्स लिखे हैं, मैंने काफी टेस्ट लिखा है, एंड आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे. जो ये बच्चे हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है. अगर जरूरत होगी तो दे डू दिस एडवांस करंट अफेयर्स, जिसमें सिर्फ 2 क्लासेस अ वीक होंगी, एंड विल डील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक. दैट्स इट. ओके, तो दिस इज द जनरल स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन फॉर स्टूडेंट्स who are planning to appear in the mains in August 2024. इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. अगस्त 2024 में मेंस में जो बच्चे अपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी फॉर पीपल हु आर प्रिपेयर्ड एंड फॉर पीपल हु आर अनप्रिपेयर्ड. फॉर पीपल हु आर प्रिपेयर्ड विद जीएस एंड फॉर पीपल हु आर अनप्रिपेयर्ड विद जीएस. मैंने इसमें आपको एमएमपी प्रोग्राम भी समझाया. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बिफोर आई गो अहेड फॉर अदर स्टूडेंट्स. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. गॉट द क्लैरिटी? ओके. नाउ सोनिका इज आस्किंग, सर आई हैव डन बेसिक फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एथिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी. If in these 60 classes you are going to cover the same for basic again. बेटा देखो, यहां पे ना जो भी चीज हम एग्जामिनेशन हॉल में लिखने वाले नहीं है, हम वो कवर नहीं करेंगे. We are going to stick to precisely what we want to write in our answers. कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. नो स्टोरीज, नो फालतू का ज्ञान, जस्ट what is needed for exam. If we had 6 months, we would have done a lot of other things, but we only have 2 months here. Sir, I'm part of GS Foundation. Am I also supposed to take? No, beta, if you are part of GS Foundation, you have already your GS 1, 2, 3, 4 completed. और अगर आपको जरूरत भी पड़ेगी, if you're writing mains this year, आपको mains crash course का कुछ भी access चाहिए होगा, हम आपको वैसे ही provide करेंगे. A student of GS Foundation program at Level Up IAS will never have to join any GS course at Level Up IAS. है ना, हम वो वी विल टेक केयर ऑफ दिस. बेटा अगर आपका एथिक्स प्रिपेयर्ड है तो आप एथिक्स मत करना, है ना. एमएमपी का फी, जो एमएमपी का मैंने आपको कोर्स बताया, उसका ऑनलाइन फीस ओनली 10,000 रुपीज, जिसमें क्लासेस, आंसर राइटिंग सेशंस, हैंडआउट्स सब इंक्लूडेड है. आप एथिक्स जिस चीज में प्रिपेयर्ड हो वो मत करना. सर कैन यू सजेस्ट बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर साइकोलॉजी. बेटा एक ना क्रोम आईएएस में मैम है, शी हैज बीन डूइंग रिसेंटली वेरी वेल इन साइकोलॉजी. प्लीज उनको एक बार कांटेक्ट करके देखिएगा. एक इंस्टीट्यूशन है क्रोम आईएएस, वहां पे एक मैम है, शी इज गुड फॉर साइकोलॉजी. बेटा एमएमपी में जो आंसर्स है वो तो हम क्लास में ही टीचर्स खुद डिस्कस करेंगे. उसका ऐसा जो लाइव आंसर राइटिंग है उसमें इंडिविजुअल हर आंसर का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे. आप टीचर डिस्कस करेगा, आप खुद से उसे समझ पाओगे. बट टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन होगा तो उसमें आपको मेंटर भी मिलेंगे, आपको कॉपी इवैल्यूएट होके भी मिलेगी, एंड जो बच्चे मेंस लिख रहे होंगे उनको मैं पर्सनली भी बात कर पाऊंगा, देख पाऊंगा. अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा मैं. देखो, सम ऑफ यू आर हियर कि सर वी आर डाउटफुल, तो शुड वी बी ज्वाइनिंग एमएमपी. देखो सिंपल सा है,
आप ज्वाइन करिए, पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि पढ़ना आपको मेंस के लिए. इन केस यू डोंट क्वालिफाई प्री, what I'll do is I will get your MMP shifted to the 4-month MMP, which will start in at the end of August. At the end of August, we'll launch another mains masters program, which will be a 4-month program. उस टाइम रहेगा हमारे पास, तो हम थोड़ा और elaborately पढ़ पाएंगे. तो if you don't clear preliminary examination, we will shift you there. We will shift you in that mains masters program. I hope you get it. बेटा MMP ऑफलाइन की फी 50,000 है, 15,000 और ऑनलाइन वाले की फी 10,000 रुपीज है. अर्श इज सेइंग कि उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बेस नहीं है. बेटा देखो, सबसे पहले ना हिस्ट्री ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए. इस बार अगर आप मेंस नहीं दे रहे हो, आप उठा के पहले 1-2 स्टैंडर्ड बुक्स रीड कर लो, वो आपको पूरा बेस देगा. और अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास मॉड्यूलर कोर्सेस है, एंशिएंट मिडिवल कल्चर के निखिल सर के, मॉडर्न के भी निखिल सर के मॉडल कोर्सेस है, आप वो ले सकते हैं. I'm based in Chandigarh. Should I come to Delhi for mains preparation or should I prepare online only? बेटा देखो, home has its own advantage. It's your comfort zone. You can study more. You can work more. You'll have parents to support you. Delhi में आना, फिर weather in Delhi, temperature in Delhi, all those things do create problems, है ना. तो if you can get a mentoring support, proper mentoring support, चंडीगढ़ से ही करो. पर अगर आप you're like फाइनेंस इज नॉट एन इशू, दिल्ली में थोड़ा सा अच्छी जगह रह के आप अच्छे से पढ़ना चाहती हो और आप ऑफलाइन टेस्ट लिखना चाहती हो, आप ऑफलाइन आके हमसे मिलना चाहती हो, तो ऑफलाइन आ जाओ. बट होम हैज सर्टेन एडवांटेजेस, दिल्ली वुड हैव अदर एडवांटेजेस. जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट लिख पाओगी, आप टीचर से क्लास के बाद बात कर पाओगी, जो हम क्लास में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आप क्लास के बाद उसे इवेलुएट करवा पाओगी, वो सारे एडवांटेजेस रहेंगे. Sir, I belong to EWS category and my score is 80 and CSAT I'm getting 77. Should I do? What should I do? बेटा मेंस के लिए प्रिपरेशन करो, बॉर्डर पे हो और देयर आर गुड चांसेस हो जाएगा. आप इस सेकंड कैटेगरी में आ रही हो तो आपको ये करना चाहिए. सर टारगेट मेंस के बैच का फी, बेटा टारगेट मेंस में हम GS2 GS3 करेंगे, तो GS2 GS3 का ना एक्चुअली हम टारगेट मेंस अलग से बैच नहीं लॉन्च कर रहे हैं, हम GS2 GS3 के मॉड्यूल्स है वो लॉन्च करेंगे. वो शायद 5,000 रुपीज में हो जाएंगे. मैं आपको रादर रिकमेंड करूंगा आप 10,000 रुपीज में पूरा MMP का कोर्स ले लीजिए, जिसमें GS 1 2 3 4 सारा विद करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको. सर लेवल अप के GS के आंसर की, बेटा मेरे को समय नहीं मिल पाया, मेरी टीम ने बना दिया है बट आई वांटेड टू चेक इट. आज एंड ऑफ डे तक मैं वेरीफाई करके चेक करके पूरा रिलीज करवाता हूँ. सर PSR के लिए क्या करें? मैंने मैम के यहाँ से क्लासेस की हैं और उनके नोट्स है मेरे पास. बेटा इफ यू आर क्लियरिंग मेंस प्री दिस ईयर, आप चंदन सर से मिलिए आके और या फिर फोन पे बात करिए और एक टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स करिए. टेस्ट लिखिए एवरी संडे. आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट विद चंदन सर, बिकॉज चंदन सर ना आपसे आपका पेपर खुद इवेल्युएट करते हैं रादर देन हायरिंग इवेल्युएटर्स एंड ऑल. तो वो बेनिफिट करता है बहुत सारे बच्चों को जो आप टीचर से डायरेक्ट गाइडेंस ले पाते हैं. ईशानी मैं आपके लिए ना एक अलग से सेशन करवाता हूँ इनके लिए, GS फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए. संदीप बोल रहे हैं सर आई एम डाउटफुल अबाउट प्रीलिम्स इफ आई टेक MMP कोर्स एंड प्रीलिम्स नहीं होता है. बेटा अगर आप MMP कोर्स लेंगे और आपका प्रीलिम्स नहीं होगा तो मैं आपको MMP 2026 में जो अगस्त में शुरू हो रहा है उसमें शिफ्ट करवा दूंगा. पढ़ना तो मेंस के लिए है ही ना. इफ यू आर प्लानिंग टू राइट एग्जाम इन 2026 तब भी मेंस के लिए प्रिपेयर करना होगा, एंड ये कोर्स में आपका MMP 2026 में शिफ्ट करवा दूंगा. संदीप दिस वाज फॉर यू बेटा. सर CSAT स्कोर वेरीज फ्रॉम 77 टू 60. बेटा हाँ, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ भी बना के दे देते हैं. देखो अगर 77 कहीं पे आ रहा है, देयर आर प्रीटी गुड चांसेस यू विल क्वालिफाई. अभिराम मैं GS फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए एक सेशन अलग से लेता हूं. हाँ, अब कोर्स ऑफ एक्शन फॉर पीपल स्कोरिंग लेस देन 60 उनकी भी बात करते हैं. सर विल द नोट्स लार्जली रिमेन सेम फॉर द अपकमिंग MMP एज दैट ऑफ सितंबर बैच? नहीं बेटा, थोड़े चेंजेस होंगे. देखो जब हम सितंबर में पढ़ा रहे थे तो नया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया नहीं था, नया बजट नहीं था, बहुत सारे जो करंट इवेंट्स हुए थे वो नहीं थे, बहुत सारे AI में डेवलपमेंट हुए थे वो नहीं थे, है ना. तो नोट्स में स्लाइटली चेंजेस होंगे बट वो मैं करंट अफेयर्स में अपडेट कर दूंगा, है ना. मैंने जैसे आपको बताया कि एक करंट अफेयर्स
एडवांस प्रोग्राम लॉन्च करेंगे हम फॉर पीपल हु आर like very well prepared, who they do not have to join PMP, they do this advanced current affairs, उसमें अपडेट हो जाएंगे, तो आपके जो ओरिजिनल नोट्स है उसे ही पढ़िए। ओके अमृता जी, व्हेन कैन वी मीट चंदन सर? मैं आपको बताता हूं, चंदन सर अभी छुट्टी पे है तो एक बार वो आ जाए फिर बात करते हैं। सर एंथ्रो का भी क्रैश कोर्स होगा? हाँ बेटा, एंथ्रो का क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, हमारी वेबसाइट पे है और एडमिशंस भी स्टार्ट हो गए, आप उसे ले सकते हैं। बेटा 1 जून मैंने आपको बोला था, 1 जून से 30 जून तक पुराने एमएमपी वाले बच्चों को दोबारा से पोर्टल एक्सेस करेंगे, है ना। 1 जून से हो जाएगा, जैसे जो आपको प्रॉमिस किया गया था उस दिन हो जाएगा। शिवम इज सिंह, सर आई एम ईयर पीएमपी स्टूडेंट। नहीं बेटा शिवम, अगर ना आपको अभी से प्रिपरेशन चालू करना है, आप अभी एमएमपी ज्वाइन कर लो, और फिर अगर प्री नहीं होता है आई विल गेट इट शिफ्टेड टू द अगस्त सितंबर वाला एमएमपी। ऋषभ, मेंस के लिए तैयारी करो अच्छे से, है ना। देर आर जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जाम का, देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल क्लियर विद दिस कोर्स। सीसैट में 80, जीएस में 85 प्लस, यू विल क्लियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिस ईयर। मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। सीसैट कीज बहुत वेरी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं एक बार हिमांशी मैम से बोलता हूँ सबके कीज को देख के सबसे अच्छा वो करे। मेरे से कॉल पे बात आज 5 बजे के बाद कर लेते हैं। सर आई एम गेटिंग 80 to 85 जीएस में। हाँ बेटा 80 to 85 जीएस बॉर्डर पे हो, थोड़ा भगवान का नाम लो और मेंस की प्रिपरेशन करो, है ना। हो जाएगा, मतलब मुझे लगता है हो जाना चाहिए, थोड़ा सा गुड लक चाहिए होगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड अपना मेंस का बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। नहीं बेटा, दे शुड नॉट ज्वाइन एमएमपी 2026, वो फिर बस करंट अफेयर्स ज्वाइन कर ले और उसमें अपडेट हो जाएगा। डोंट ज्वाइन एमएमपी अगेन। एक बार एमएमपी कर लिया तो यार पूरी तैयारी हो गई आपकी जीएस 1 2 3 4 की। पूर्व इज गेटिंग 88 इन अकॉर्डिंग टू विजन की, ओबीसी है और करंट अफेयर्स प्रोग्राम के पार्ट थे। हाँ बेटा अपूर्व, आपको ना एंथ्रो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और जीएस में जीएस 2-3 इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स प्रोग्राम, तो आप एमएमपी ज्वाइन कर लो, मैं उसका कुछ करवाता हूं, सो दैट यू ओनली हैव टू पे हाफ द फी। ईशान इज आस्किंग, सर पार्ट ऑफ फुल ईयर करंट अफेयर्स प्रोग्राम हैड अ वर्ड 2 days बैक, GS2 GS3 already included, will a GS test series add on essay ethics only add on be available? हाँ बेटा, GS टेस्ट सीरीज जो अपना है दैट विल बी इन सिंक विद करंट अफेयर्स प्रोग्राम आल्सो, मतलब एमएमपी में जो पढ़ा रहा हूं मैं वो करंट अफेयर्स प्रोग्राम में भी वही सिमिलर चीजें पढ़ा रहे होंगे। अच्छा नहीं बेटा, नोट्स में तो वेरिएशन आएगा, बट यू जस्ट टेक द नोट्स, यू डोंट अटेंड ऑल द क्लासेस अगेन। 76 to 78 क्या करना चाहिए बेटा? कोशिश करो मेंस की प्रिपरेशन जितनी जल्दी हो पूरी खत्म कर लो, सो दैट टारगेट की अगस्त में मैं भी मेंस लिख रहा हूं और उसे कंप्लीट करो। मैंने बताया था ना, जो इवन फॉर दीज स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग लेस देन 80, हमें मेंस पे ही एम्फेसिस करना है। सर आपका नंबर दे दीजिए बेटा, मैं यहाँ टाइप कर देता हूं चैट बॉक्स में, आप लोग ले लीजिए नंबर, प्रेफरेबली मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़िए, आई विल कॉल यू बैक ना। आई हैव टाइप्ड माय नंबर in the chat box, please take it from there. Beta after 5 p.m. I have given time for students to meet. उस टाइम आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं जैसे ही स्टूडेंट से फ्री होऊंगा I'll get in touch with you. अंशुल इज आस्किंग 88 to 91 है, प्री तो हो जाएगा, एमएमपी भी करा हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ प्री कम मींस करंट अफेयर्स बैच, व्हाट शुड आई ज्वाइन करंटली? कुछ नहीं ज्वाइन करना बेटा, अपने ऑप्शनल पे ध्यान दो, करंट अफेयर्स अपडेट करो, करंट अफेयर्स जो पढ़ाया जाएगा वो अपडेट करो, एंड दैट्स इट, योर प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन। ज्वाइन अ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, ज्वाइन अ जीएस टेस्ट सीरीज, और करंट अफेयर्स में जो अपडेट आएगा सिर्फ वो करो, बाकी यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। अंशुल, दिस वाज फॉर यू बेटा। ईशानी सजेशन चाहिए बेटा, 5 बजे के बाद आई एम अवेलेबल। यस बेटा, यू शुड टेक जीएस टेस्ट सीरीज। अपूर्व, आपको जीएस टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। तो बेटा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जितना मैं समझता हूं, कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स, लाइक सैमसंग पूछ रहे हैं ये, तो कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स शुड बी बिटवीन 80 and 85। यस, यू कैन कम एंड सी मी टुमारो, 5 बजे से 8 बजे तक कभी भी आ जाओ ऋषभ, आई विल बी अवेलेबल टुमारो। शिवम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मैंने अभी लॉन्च नहीं किया है 2026 वाला, मैं लॉन्च कर दूंगा तो अवेलेबल हो जाएगा।
हाँ, सिर्फ करंट अफेयर्स प्रोग्राम विल बी अवेलेबल, आई विल अनाउंस इट सून। बेटा क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज में ना, सोनिका आपके लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज में बहुत फी डिफरेंस नहीं है। टेस्ट सीरीज में शायद 1-2 हज़ार रुपए और ऐड करोगे, आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है तो ले लो एक बार ना। बिफोर टेस्ट 2-3 क्लासेस में जो फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाता है, दैट बेनिफिट्स। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा फॉर ऑप्शनल, आप लोग ना सिर्फ टेस्ट सीरीज मत लीजिए अगर आप लेवल अप में ले रहे हैं, क्योंकि मैं चारों टीचर्स को जानता हूं जो क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, दे आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट, वो फटाफट आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। तो टेक क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। सुरभि बोल रही है मेरे जीएस में 90-96 है एंड सीसैट में 80 आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। अब बेटा क्या करें अब डर नहीं लगना चाहिए, इस पे तो पक्का आपका क्लियर होगा प्री। यू आर वेरी वेलकम संदीप, यू आर वेरी वेलकम। और कोई डाउट है तो बताइए, और कोई डाउट है तो बताइए, मैं बात करता हूं। लेट मी नो गाइस, अभी भी आई कैन सी 70+ स्टूडेंट्स ऑनलाइन। कोई और डाउट्स कंसर्न? गायत्री सिंह की उन्होंने लेट ज्वाइन किया। गायत्री आई गेट दिस वीडियो अपलोडेड ऑन यूट्यूब आज ही, है ना। आई गेट दिस वीडियो अपलोडेड, आप एक बार देख लीजिएगा। आई एक्सप्लेन इट टू, आई एक्सप्लेन इट हेयर। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जिन्हें जीएस 1 2 3 4 प्रिपेयर्ड है, उनको क्या करना चाहिए, आई एक्सप्लेन दैट। ओके, आई गेट इट अपलोडेड। तो प्रियंका इज सेइंग सर आई डिडंट प्रिपेयर सोशियोलॉजी वेल। कोई बात नहीं बेटा, देखो अभी ना इट्स ऑल्सो अबाउट माइंडसेट। आप ये मत सोचो कि पास्ट में ये गड़बड़ हो गई वो गड़बड़ हो गई। अब वॉट एवर टाइम यू हैव, वॉट एवर बेस्ट प्रिपरेशन यू कैन मेक दैट राइट। अभी जितना सोशियोलॉजी पढ़ा है रिवाइज करो, क्रैश कोर्स को सुनो, एवरी वीक 2-3 क्लासेस वुड बी देयर, अटेम्प्ट टेस्ट, कीप ऑन वर्किंग। कई बार ना टीचर्स भी जिन बच्चों को वीक बोल रहे होते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं। आई नो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि वन ऑफ माय टीचर फ्रेंड सेड यार ये बच्चा बहुत वीक है, इसके 210-20 नंबर भी नहीं आएंगे ऑप्शनल में। उस बच्चे के 260-270 नंबर आए हैं। तो ना कई बार लास्ट मोमेंट तक अपना बेस्ट देना ही काफी होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो ना अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स यू विल नीड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये मत सोचो कि पहले ये कर लिया होता तो वो होता, ऐसा होता, ये सब चीजें आपको पीछे खींचेंगी। अब वी हैव 2-3 मंथ्स, गिव योर बेस्ट एंड यू विल सी रिजल्ट्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अच्छे आएंगे। यस स्वाति, दैट इज ट्रू। MMP will be A to Z it for clearing mains from basic to advanced and from static to current affairs, everything। बेटा क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। प्रियंका देखो आपका सोशो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है ना, क्रैश कोर्स में क्विक रिवीजन भी होगा। आप अपना एग्जिस्टिंग नोट्स पढ़िए, क्रैश कोर्स में फटाफट रिवाइज करिए और फिर टेस्ट दीजिए, है ना। ज्वाइन सोशो क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। सर नोट्स बीइंग गिवन इन अपकमिंग MMP बी इनफ फॉर GS और डू वी हैव टू रेफर टू समथिंग एल्स? बेटा सिर्फ जो दिया जाएगा वो कर लोगे ना, वो भी काफी होगा। बहुत सारी चीजों के पीछे भागना नहीं होता है। मेंस में इट इज इजी टू डिटरमाइन क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस है। तो बस ये कर लोगे काफी रहेगा, यू विल नॉट नीड टू रेफर टू एनीवन। क्लास टाइमिंग फॉर MMP विल बी इन द MMP विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of June। क्लास टाइमिंग विल बी इन द इवनिंग 5 to 8। जनरली 5 to 6 हम आंसर लिख रहे होंगे, तो 6 to 8:39 हम पढ़ रहे होंगे इवनिंग। आपको क्या करना है, जैसे मैं जनरली बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे गिव फॉर ऑप्शनल, सेकेंड हाफ ऑफ द डे गिव फॉर GS। 2 बजे के बाद रिवाइज करो जो भी पिछली क्लासेस में किया है, और 5 to 9 गिव टू अस फॉर मेकिंग यू राइट आंसर्स एंड फॉर मेकिंग यू कवर न्यू टॉपिक्स। ओके, तो क्लास टाइमिंग फॉर MMP विल बी फ्रॉम 5 to 8। वो 5 to 8:30 5 to 9 जाएगा, उसका कुछ वो नहीं है, ठीक है। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। कैन यू सजेस्ट सम गुड ब्रोकर्स? बेटा मैं कोशिश करूंगा, है ना, यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करते हैं। बेटा आप क्लास स्वाति आप क्लास के बाद मुझसे इवैल्यूएट करवा लेना, है ना। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके कर दूं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्लास, हम उसका इतना एलाबोरेट डिस्कशन करेंगे। अमरदीप इज सेइंग सर आई एम क्लियरिंग प्री बट आई एम ट्यूशन टीचर,
ऑल्सो प्लीज मीट मी टू सॉर्ट थिंग्स आउट. बहुत डर लग रहा है. भाई अमरदीप आ जाओ ना. 5 to 8 आई हैव ऑलरेडी पुट स्टेटस. अमरदीप बोल रहे हैं सर आई एम क्लियरिंग प्री बट आई एम ट्यूशन. हाँ अमरदीप 5 PM to 8 PM आई एम अवेलेबल इन ऑफिस टिल फ्राइडे एटलीस्ट. मंडे से क्लासेस हो, सैटरडे संडे ऐसा हो सकता है मैं ना रहूं, बट टिल फ्राइडे आई एम अवेलेबल. आप आ जाइए. सर ऑफिस और ये एमएमपी कैसे मैनेज होगा? एनी एक्सपीरियंस? बेटा अगर प्री क्लियर हो रहा है ना, टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 months. आप देखो जितने भी बच्चे वो होते हैं ना कि मैंने जॉब के साथ साथ एग्जाम क्लियर किया हुआ है, वो 2-3 महीने का ब्रेक लेते हैं प्री और मेंस के बीच में. कोशिश करो छुट्टी मिल जाए, सैबैटिकल मिल जाए, सिक लीव लगा दो यार. बोल दो टांग टूट गई है और नहीं आ सकता ऑफिस, लगा दो सिक लीव कुछ. बट मेंस की प्रिपरेशन करनी है, आपको थोड़ा सा जॉब को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अच्छा घर का वो भी इशू है तो बेटा फिर ऐसे प्लान करो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे फिर आपको मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी. सुबह उठो 5 बजे, ऑफिस जाने से पहले 2-3 घंटे ऑप्शनल पढ़ो, फिर वापस आओ ऑफिस से और 2-3 घंटे जीएस पढ़ो. जितना हो सकता है अपना बेस्ट दो. हाँ बेटा एसडी बेटा एसडी पता नहीं एसडी का नाम क्या है. वो पूछ रहे हैं कि क्या 5 to 8 आज मिल सकते हैं. हाँ बेटा यू कैन मीट मी टुडे. Sir, for 2026 attempt, when can we expect full course for socio optional? Beta, it's already starting on 2nd of June. Socio foundation course is starting on 2nd of June. Venkat, socio foundation course is starting on 2nd of June, बच्चा. Okay, चलो. थैंक यू वेरी मच. मैं एक और सेशन लूंगा उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर 60 से भी कम है. उनको एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाना है, डिफरेंट तरीके से बताना है. अगर आपका स्कोर बहुत खराब रहा है, मतलब फंडामेंटल्स अभी भी वीक है, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे उनसे डील प्रॉब्लम से डील करना है. वी विल टॉक अबाउट ऑल दो स्टूडेंट्स इन द अपकमिंग सेशन. मे बी कल या परसों में एक सेशन लेता हूं फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डन रियली बैड इन द टेस्ट्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. वो आगे कैसे प्लान करें. यस मैं ये वीडियो अपलोड करता हूं. ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग नाउ हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. वहां पे हम इसे करते हैं. ठीक है चलिए. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच.